Students, hope you are doing well. Today we will start chapter 8 Motion. This chapter is from physics. Many children are afraid of physics. But don't worry, I will try to overcome your fear first in English and then in Hindi. So let's start the first topic, Introduction of Motion. In everyday life, we see some objects at rest, others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are all in motion. Most motions are complex. Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate, and a few others may vibrate. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. And after that, we shall learn to express such motions through simple equations and graphs. So, first topic is describing motion. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to railway station. In this example, the railway station is the reference point. So, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin. Now in Hindi, एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें से कुछ क्या होता है रुका हुआ रहता है और कुछ मूवमेंट में रहता है। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे चिड़िया का उड़ना, मछलियों का तैरना, ब्लड का फ्लो होना वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू, फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज, ये सबके बारे में बताया कि सबके सब मोशन में रहते हैं। बहुत सारे मोशन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ रोटेशन में होता है और कुछ वाइब्रेट करते रहता है। इस चैप्टर में हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, जितने मोशन है उसको दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन में किस तरह से मोशन होता है उसको पढ़ेंगे और फिर इसी से रिलेटेड ग्राफ्स एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आता है डिस्क्राइबिंग मोशन। इसमें क्या कर रहे हैं, एक गांव में स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में है। क्या कहा, एक गांव में स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में है। अब रेलवे स्टेशन को क्या किया, ज्यादा एम्फेसिस डाल दिया, तो रेलवे स्टेशन यहाँ क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया और इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मोशन along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O for origin, which is treated as a reference point. Let A, B, C represent the position of the object at different instants. Okay, A, B, and C. At first, object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C through B. The total path length covered by the object is OA, this one OA plus AC. So total distance equals to 60 kilometer. Look at this, 60 kilometer and plus air to air is 35 kilometer. So 60 kilometer plus 35 kilometer, it means 95 kilometer. This is the distance covered by the object. To describe distance, we need to specify only the numerical value, not the direction of the motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical value, and numerical value of the physical quantity is its magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A.
Now there is one definition for displacements. The shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement. Okay. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by the object? Maybe and may not be. Answer is maybe, may not be. Consider the example given in that figure. For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 km and magnitude of displacement is also 60 km. During its motion O to A and back to B, the distance covered is 60 km plus 25 km equals to 85 km. While the magnitude of the displacement equals to 35 km. Okay, this one 35 km. O to B is 35 km. Is not equal to the path length 85 km. Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. If we consider the object to travel back to O, the final position coincide with the initial position. Okay, final position coincide with the initial position and therefore the displacement is 0. However, the distance covered this journey OA to AO equals to 60 plus 60. It means 120 km. Now in Hindi, आइए डायग्राम से ही चलते हैं. ये एक डायग्राम दिया हुआ है. क्या है? यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. यहाँ तो O पॉइंट लिखा हुआ है जिसको कि हम लोग ओरिजिन कहते हैं. यहाँ C पॉइंट लिखा है, यहाँ B पॉइंट लिखा है, यहाँ A पॉइंट लिखा है. पहले क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट करके, फर्स्ट जो एग्जांपल दिया, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए वो A पॉइंट पर ले जा रहा है और फिर A पॉइंट से बैक वो C पर ला रहा है थ्रू B, यानी B से होते हुए वो C पॉइंट पर ला रहा है. अब डिस्टेंस पहले पता करना है कि डिस्टेंस कितना वो कवर किया. वो जो ऑब्जेक्ट था जो O से A पर जा रहा है और A से फिर वापस C तक आया है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ नीचे में देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है इन किलोमीटर. तो O से A तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है. ओके, लेकिन वो ऑब्जेक्ट सिर्फ A पर आकर के रुका नहीं है, वो फिर A से C तक भी जा रहा है. तो जब हम A से C तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो 35 किलोमीटर होता है. कैसे? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, यानी इंटरवल जो है ये 2 पॉइंट का इंटरवल वो 5 किलोमीटर का इंटरवल है. तो हम लोग इधर से स्टार्ट, इधर से तो सीधा सीधा है, तुम लोग को समझ में आ गया कि 60 किलोमीटर है, लेकिन बैक जब होते हैं तो उसका इंटरवल देख लेते हैं कि कितना हो रहा है. यहाँ से यहाँ 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे चलता जाएगा 6 C तक पॉइंट तक. तो हम काउंट कर लेते हैं सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 7. इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 35 किलोमीटर. तो जब हम पहला कंडीशन लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट O पॉइंट से A पॉइंट पर आ रहा है और A पॉइंट से फिर वो बैक जा रहा है C पॉइंट पर, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यानी कि 60 किलोमीटर एंड प्लस 35 किलोमीटर 95 किलोमीटर. ओके, ये तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर किया. लेकिन यदि हम देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट था जो O पॉइंट से चला था और फिर जा करके फिर से वापस C पॉइंट पर आया, तो एक्चुअल में अब जब वो आकर के रुका है जिस पोजीशन पर, यानी C पोजीशन पर रुका है, तो एक्चुअल में उसके ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है. तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हुआ, यही तो आकर के रुका, यहाँ से गया, स्टार्ट हुआ A पर गया, A से आकर के यहाँ आकर के रुक गया C पर. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर. तो ये जो 25 किलोमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. ओके, और जो ऐसे घूम करके यहाँ से गया और फिर यहाँ आया वो डिस्टेंस कहलाएगा. तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी इसमें आते हैं, डिस्टेंस भी आता है और डिस्प्लेसमेंट भी आता है. ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी आते हैं. अब कह रहा है कि डिस्टेंस जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता. डिस्टेंस तो कुछ होगा, यानी मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूवमेंट में होगा तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा. तो 0 तो हो ही नहीं सकता. यदि दूरी तय कर रहा है, यदि हम उसको कह रहे हैं मूवमेंट वर्ड डाल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट करा रहे हैं, तो मूवमेंट कराने का मतलब ही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना.
तो जब एक जगह से दूसरी जगह कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मान लेते हैं, हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन तो था कि जो ओ से ए के पास गया और ए से सी के पास आकर के रुक गया। हम एक दूसरा कंडीशन लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को ओ पोजीशन से हटा करके ले जाते हैं ए पर और ए से फिर से बैक ला करके ओ पर रख देते हैं। तो डिस्टेंस कितना, ये दूसरा कंडीशन में डिस्टेंस कितना कवर किया वो ऑब्जेक्ट? तो 60, यहां से यहां तक 60 और फिर वापस आया 60, यानी 120 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मेन पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से मिनिमम डिस्टेंस जब वो रुक गया हो तब। तो वो ऑब्जेक्ट जो दूसरा कंडीशन हमारा था, वो ऑब्जेक्ट पहले ओ से ए के पास गया और ए से फिर ओ के पास आकर के रुक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर वो कंसाइड कर रहा है, यानी यहीं आकर के रुक रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ओके, अब आगे आते हैं। सेकंड टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तो आप लोग सुने होंगे क्या होता है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए आप लोग स्कूल आते हो, क्या पहन के आते हो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसलिए उसका नाम है, ड्रेस पहन के आते हैं, ऐसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में इसको ड्रेस कहते हैं, लेकिन ड्रेस नहीं, इसको जब स्कूल के लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के आना। तो यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि सब के सब, सारे सभी बच्चे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका ड्रेस एक जैसा होता है, एक कलर का होता है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो वहीं से आप समझिए यूनिफॉर्म का मीनिंग कि यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक जैसा ना हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल्स। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, माना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेट इट ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 50 kilometers more in second hour, 50 kilometers in third hour, and 50 kilometers in fourth hour. In this case, the object cover 50 kilometers in each hour. As the object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be a uniform motion. तो ये यूनिफॉर्म मोशन जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया, ये यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हो गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चल रहा है, तीसरे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चला, चौथे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चला, यानी हर घंटे में, हर आवर में वो 50 किलोमीटर ही जा रहा है। तो क्या हुआ? उसका टाइम भी एक घंटे में 50 किलोमीटर जाने का, यानी टाइम भी फिक्स है एंड डिस्टेंस भी फिक्स है। जब ऐसा होता है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। Now, repeat the definition. As the object covers equal distance means 50 kilometer in equal interval of time, 1 hour. Okay, first hour, second hour, third hour, fourth hour, 1 hour is said to be uniform motion. Understood? Now, the time interval in this motion may be small or big. In our day-to-day life, we come across motion where objects cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. These are some instance of non-uniform motion. अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाई हूँ छोटा सा, इससे समझाती हूँ कि 3 कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में एक घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि वो फर्स्ट एक घंटे में वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है, यानी कुछ ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया। फिर तीसरा कंडीशन है सेम ऑब्जेक्ट एक घंटे में यहां से यहां तक जा रहा है, यानी और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ? यहाँ 1 आवर 1 आवर 1 आवर, टाइम तो सबका सेम है, लेकिन देखो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कम ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है।
तो जब इस तरह का कंडीशन हो कि टाइम फिक्स हो बट डिस्टेंस अनइक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? अब एक एक्टिविटी है जो आपके काम का है, इसको पढ़ते हैं. The data regarding the motion of two different objects A and B are given in table 8.1. Examine them carefully and state whether the motion of the object is uniform or non-uniform. Let us see. There are three columns, first column, second and third. In first column, there are times. In second column, distance traveled by the object A in minute. And in third column, distance traveled by the object B in minute. चलिए अब इस टेबल का एग्जामिन करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म. फिर ऑब्जेक्ट बी का देखते हैं कि इसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म. कॉलम 1 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ टाइम लिखा हुआ है 9:30 AM, 9:45 AM, 10 AM, 10:15, 10:30, 10:45 AM, 11 AM. दो टाइम के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 15 मिनट्स का डिफरेंस है. 9:30 एंड 9:45, 15 मिनट्स का डिफरेंस. फिर 9:45, 10, 15 मिनट्स का डिफरेंस. फिर से आगे बढ़ते हैं 10:15, 10:30, फिर से 15 मिनट्स का डिफरेंस. यानी हर एक टाइम, दो टाइम के बीच का जो इंटरवल है वो 15 मिनट्स का है. अब ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस देखते हैं कि 9:30 AM में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 10 मीटर किया. फिर 9:45 में 20, 10 में 30. इस तरह से ये दो, इसके जो यदि दो डिस्टेंस को देखते हैं तो इसके बीच का जो डिफरेंस निकलता है वो 10 मीटर निकलता है. देख लीजिए 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर. ओके. अब ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस को देखते हैं. वो 9:30 में 12 मीटर डिस्टेंस को कवर किया. 9:45 में 19 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया. फिर इसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ 44 मीटर तक वो डिस्टेंस को ट्रेवल किया. बट दो डिस्टेंस के बीच का यदि डिफरेंस को निकालते हैं तो इरेगुलर डिफरेंस आ रहा है. 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है. बट इसके केस में सब सेम 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 है. तो ऑब्जेक्ट ए का मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा एंड ऑब्जेक्ट बी का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. इसमें मोशन के रेट को मेजर करेंगे. तो एक फिगर सामने है, इसको पहले देखते हुए चलते हैं. बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी बॉलिंग जो यहाँ क्रिकेट गेम चल रहा है इसमें बॉलिंग का स्पीड बता रहा है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. 140 है, 143 है, 135 है और लास्ट 130 तक गया है. ठीक है. दूसरा फिगर में क्या बता रहा है, ये स्पीड लिमिट दिखा रहा है. दो व्हीकल है. पहले व्हीकल का जो स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे व्हीकल का जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर है. अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आता है. व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर दिस, इस साइन बोर्ड का. ओके. तो देखते हैं क्या है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स may take different amounts of time to cover a given distance. क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा वो अलग अलग डिफरेंट टाइम ले सकता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में. ओके. सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. कुछ जो है वो फास्ट चल सकता है और कुछ स्लो चल सकता है. द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. रेट डिफरेंट हो सकता है. ऑल्सो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट. और फिर रेट भी सेम हो सकता है. इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं क्या, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, रेट भी डिफरेंट होगा और टाइम भी डिफरेंट होगा. एक तो ये स्टेटमेंट आ सकता है. दूसरा स्टेटमेंट आ सकता है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, रेट सेम होगा, टाइम भी सेम होगा. तीसरा स्टेटमेंट आ सकता है ऑब्जेक्ट डिफरेंट, रेट डिफरेंट एंड टाइम डिफरेंट. ओके. तो समझ गए. अब इससे इन तीन स्टेटमेंट से एक डेफिनेशन निकल के आता है. वो डेफिनेशन है स्पीड का. क्या है. वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. ठीक है. तो टाइम का होना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट
द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये जब वर्ड में लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, लेकिन यदि सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, एम एस रेज टू द पावर -1 या फिर एम अपॉन एस। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको भी हम मीटर पर सेकेंड पढ़ सकते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में भी आ सकता है, ठीक है, एंड किलोमीटर पर आवर। ये लास्ट वाला जो है इसमें दोनों के हायर यूनिट को लगा दिया गया, डिस्टेंस का हायर यूनिट किलोमीटर एंड टाइम का हायर यूनिट आवर। तो ऐसा भी हो सकता है यूनिट। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि हम लोग को स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। In the most cases, objects will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. जो स्पीड है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्पीड सेम ही होगा, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो ऐसे केस में उन दोनों स्पीड को, ज्यादा वाले स्पीड को और कम वाले स्पीड को, दोनों के स्पीड का डिस्टेंस को हमको पकड़ना है, डिस्टेंस को देखना है कि डिस्टेंस कितना, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना कवर किया। भले किसी व्हीकल का स्पीड कभी ज्यादा है कभी कम है, लेकिन आफ्टर ऑल वो डिस्टेंस कितना कवर किया। तो उस डिस्टेंस से, यानी कि ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या बना, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो ये यहाँ पर बता रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि स्पीड जब ज्यादा था तब का भी और कम था तब का भी, टोटल डिस्टेंस बस हमें देखना है और कितना टाइम लगा वो देखना है। तो उससे हम लोग का क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड। ओके, अब इसको सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो s किस चीज को डिनोट करता है? s डिस्टेंस को डिनोट करता है, और टाइम t जो है वो टाइम टेकन, और v इक्वल्स टू स्पीड, एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों ही कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देके समझा रहा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। A car travels a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours. एक कार जो है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। Its average speed is 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका एवरेज स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। The car might not have traveled at 50 किलोमीटर पर आवर all the time. कह रहा है ये कार जो है ये जरूरी नहीं है कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमेशा चल रहा हो। Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. तो कभी तेज चल सकता है और कभी स्लो चल सकता है। तो यहाँ पर मैं इसी 50 किलोमीटर को निकालने के लिए एक अलग एग्जांपल देकर के समझाई हूँ कि एक कार का वही 2 आवर्स वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि फर्स्ट आवर में वो जो है 80 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, दूसरे आवर में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यानी पहले वाले केस में स्पीड उसका ज्यादा है और बाद वाले केस में स्पीड उसका कम है, क्योंकि 1 आवर में 80 किलोमीटर ट्रेवल किया और फिर अगले 1 आवर में वो सिर्फ 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इट मीन्स यहाँ पहले वाले में स्पीड उसका बहुत ज्यादा था और बाद वाले में स्पीड उसका कम हो गया। टाइम कितना लगा था? टोटल टाइम कितना था? 1 आवर प्लस 1 आवर यानी 2। इन दोनों को प्लस कर देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 50। तो इसी तरह से यहाँ पर आंसर आया था कि स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड जब डायरेक्शन के साथ आता है तो उसको वेलोसिटी कहा जाता है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। ओके, क्या कह रहा है कि स्पीड ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा जब इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं वेलोसिटी का। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, ये डेफिनेशन हो गया। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब ये डेफिनेट डायरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्शन को हम इंक्लूड कर रहे थे स्पीड के साथ, तो डेफिनेट डायरेक्शन होगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है
और वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल को हम नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, ये जो है स्पीड ऑब्जेक्ट के स्पीड से चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से चेंज होता है, और दोनों से भी चेंज होता है, और बोथ। When an object is moving, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस लाइन को, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, ये चेंज हो सकता है स्पीड, ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करने से, फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने से, और दोनों को चेंज करने से, यानी कि स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी चेंज करने से। When an object is moving along a straight line at a variable speed, यदि स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल स्पीड है तो उस केस में क्या होगा, उसको मेजर करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम कौन सा टर्म का यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculated average speed. जैसे हम एवरेज स्पीड को निकालते थे उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को भी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। और उसको सिंबल से कैसे सिंबलाइज करेंगे, v ए वी, बी के लेग के पास ए वी लिखा हुआ इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2। अब कैसे, ये जो बताया इससे पहले वाले लाइन में कि स्पीड की तरह है, तो वो कैसे हो रहा है वो उसको देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला को ले लेते हैं एवरेज स्पीड का, v प्लस यू अपॉन 2, ओके। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पर जो एग्जांपल लिए थे इसमें आते हैं। यहाँ मैंने क्या किया था कि फर्स्ट आवर में स्पीड जो था, डिस्टेंस जो कवर किया था वो किया था 80 किलोमीटर, एंड सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर। तो दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर दिए थे और जितना टाइम टेकन था उसको भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस, और यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। चलिए अब एक चीज यहाँ पर ए वी देखिए, वी के लेग के पास ए वी लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एवरेज का शॉर्ट फॉर्म ए वी ले लिया गया। अब और क्या देख रहे हैं कुछ नया, कि जब हम स्पीड को देख रहे थे, स्पीड को सिंबलाइजेशन कर रहे थे, तो उस समय इसको स्पीड को v से सिंबलाइज किया जा रहा था। यहाँ एवरेज वेलोसिटी को भी v से सिंबलाइज किया जाता है, v a v से, यानी कि दोनों का सिंबल सेम है, स्पीड का भी v है एंड वेलोसिटी का भी v है। अब यदि दोनों का सिंबल सेम है तो यूनिट भी सेम होगा। तो चलिए यूनिट की बात करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर बाय सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात आए तो उसका टर्म आ जाता है एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हर जगह देखिए स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहा है, तब क्या होगा, फिर से रिपीट करती हूँ। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी उसका कांस्टेंट होगा टाइम के साथ साथ, विद टाइम। आई रिपीट, during uniform motion of an object along a straight line the velocity remains constant with time. In this case, जब आपका constant time होगा और constant velocity और तब की बात कर रहा है, in this case the change in velocity of the object for any time interval is 0. उस समय उसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन दूसरा केस क्या होगा, however in non uniform motion, जब non uniform motion होगा तब वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, तब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ बदल जाएगा। इट हैज डिफरेंट वैल्यू, इसके दूसरे दूसरे वैल्यू हो सकते हैं एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, अलग अलग पॉइंट पर, एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ, अलग अलग रास्ते पर भी। Thus, the change in velocity of the object during any time intervals is not zero. जब वेरी करेगा, वैल्यू वेरी करेगा तो ऑब्वियसली वो जीरो तो नहीं हो सकता ना, तो वही चीज कर रहा है कि जीरो नहीं होगा। अब हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में आते हैं। What is acceleration? Acceleration is a measure of the change in velocity of an object per unit time. ठीक है, इसको कहते हैं acceleration. I repeat, definition of acceleration. Acceleration is a measure of the change in velocity of an object per unit time. That is, अब acceleration का फॉर्मूला देखते हैं। Acceleration equals to change in velocity. वेलोसिटी में चेंज, स्टार्टिंग के टॉपिक में ही मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसको टर्म देते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी दो तरह का हो सकता है, पहले कुछ और हो सकता है, बाद में कुछ और सकता है। तो बाद वाले वेलोसिटी से हम पहले वाले वेलोसिटी को
माइनस करेंगे, बाद वाले वेलोसिटी से पहले वाले वेलोसिटी को माइनस करेंगे। अब सिंबल में देखते हैं, एक्सेलरेशन को ए से सिंबलाइज किया जाता है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, तो v माइनस u अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशन को जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के टर्म में जब होगा तब उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यदि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के टर्म में नहीं होगा तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव वेलोसिटी, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब यूनिट की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. यदि दोनों सेम है तो उसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यदि सेम नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. ठीक है, okay, that's enough for today. Thanks for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.